Luke chapter 7 verse 12. लूक का 7 अध्याय वचन 12। One major pain will go. एक मुख्य दत्त जाएगा, Yeah, it will go. जाएगा वो, Yeah, the Lord will. प्रभु निकालेंगे। Yeah. Soon afterwards, Jesus went with his disciples to the village of Nain, तो फिर यीशु जो उसके बाद अपने शिष्यों के साथ नाइन गांव में गए and a large crowd followed him. और बड़ी भीड़ उनके पीछा करने लगी। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you and I कि आप और मैं will be a following crowd behind Jesus. यीशु के पीछे उनका पीछा करने वाली भीड़ होगी। Yeah. Verse 12. वचन 12। And a funeral procession was coming out as he approached the village. तो जैसे वो गांव में पहुंचा, जो अंतिम विधि का जुलूस था वो वहां तक पहुंचा। Yeah. So Jesus is coming into the city or the village. तो यीशु जो है गांव में आ रहे थे, Crowd was behind him. भीड़ उनका पीछा कर रही थी, And one procession is going out of the city. और एक जो जुलूस है शहर से या गांव से बाहर जा रहा है। Yeah. And there are people there also. और वहां पर भी लोग थे। You're all with me? आप मेरे साथ हो? So these two groups of people, they meet. तो ये जो लोगों के दो झुंड है मिलते हैं, Yeah. And something begin to happen. और कुछ होना शुरू होता है। That same Jesus वही यीशु who is here जो यहाँ पर है today, आज, he is here also. वो यहाँ पर भी उपस्थित है। Amen। Same Jesus. वही यीशु। Okay, we'll go to Matthew 18 verse 20 because you should know it. मत्ती 18 अध्याय वचन 20 आपने जानना है। Yeah. Wherever 2 or 3 are gathered in my name, जहाँ कहीं 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, I am there. मैं वहाँ उपस्थित हूँ। So if you believe the Lord is here, तो यदि आप विश्वास करते हो प्रभु हमारे बीच में यहाँ पर है, yeah, I want you to say thank you to the Lord. मैं चाहता हूँ प्रभु को धन्यवाद कहिए। Okay. Hebrews chapter 13 verse 8. इब्रानियों 13 अध्याय वचन 8। He never changes. वो कभी बदलते नहीं है, He is the same वो एक समान है, yesterday, कल, today, आज and tomorrow also. और कल भी। That means what I am trying to tell you is इसका अर्थ मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, what he did over there in that village, जो यीशु ने उस गांव में वहां पर किया ना, that thing वो चीज he's going to do today also. वो आज यहाँ पर भी करेंगे। You all with me? Okay. आप सब मेरे साथ Now हो? I want to make 4 statements. मैं 4 वाक्य कहना चाहता हूँ यहाँ पर। Number 1, पहला, 2 groups met together. 2 झुंड जो है साथ में मिले, They met together. वो साथ में मिले। One was coming, एक आ रहा था, one was going. एक जा रहा था। One group is coming, एक झुंड अंदर आ रहा था following Jesus. यीशु का पीछा करते हुए। You are ready? आप तैयार हो? That group, वो झुंड, they had joy. उनके अंदर आनंद था। You know why they had joy? पता है क्यों आनंद था उनके अंदर? Why they were rejoicing? वो आनंद क्यों मना रहे थे? Because he said, क्योंकि उसने कहा, I am life. उसने कहा मैं ही जीवन हूँ। Wherever he comes, जहां कहीं भी वो आते हैं, life will come. जीवन आएगा। And they were all rejoicing और वो सब आनंद मना रहे थे because miracles are happening, क्योंकि चमत्कार हो रहे थे, lives are changing. जीवन बदल रहे। So they are all excited. तो वो सब उत्साहित है। So as they are following Jesus, तो जैसे वो यीशु का पीछा कर रहे, they are shouting victorious songs. वो जो है जयवंत गीत गा रहे थे, But in the front, लेकिन आगे से another group is coming. और एक झुंड आ रहा है। A widow एक विधवा, has lost her only young son. उसने अपना इकलौता जवान बेटा खो दिया था। And that whole group और वो पूरा झुंड was sorrowful. दुख से भरा हुआ था। That whole group वो पूरा झुंड was crying. रो रहा था। And they were going to a place called cemetery. और कब्रिस्तान नाम के स्थान पर जा रहा था, And it's outside the village. और वो गांव के बाहर था। I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, There is always death outside the Lord. हमेशा मृत्यु प्रभु के बाहर होती है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you will be found in that group which follows Jesus. कि आपको उस झुंड में पाया जाए जो यीशु का पीछा करता है। Number 2, दूसरा, before we go there, John 10 verse 27, 28. यूहन्ना 10 अध्याय वचन 27 और 28। My sheep listen to my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। Anybody sheep of the Lord? कोई प्रभु की भेड़ है यहाँ पर? They hear the voice of the Lord. वो प्रभु की आवाज सुनती है। And the Lord says, I know you. और प्रभु कहते हैं मैं तुझे जानता हूँ। And the Bible says, और बाइबल कहती है they
follow me. वो मेरा पीछा करते हैं। And the next verse is beautiful. और अगला वचन बहुत सुंदर है। It says, वचन कहता है, I give them eternal life. मैं उन्हें अनंत काल का जीवन देता हूँ। That means even if you die physically, इसका अर्थ यदि आप शरीर में मर भी जाओ, don't worry. चिंता मत करो। Eternity अनंत काल you will spend with the one who loved you. आप उसके साथ बिताओगे जिसने आपसे प्यार किया। Yeah. आप चिंता मत करो। डर लगता है क्या मौत का? बहुत डर लगता है। जब मैं मेरे दोस्त को गाड़ रहा था तब मुझे लग रहा था क्या हो रहा है। But then I saw this beautiful verse. फिर मैंने ये बहुत सुंदर वचन देखा, I gave you eternal life. मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देता अच्छा, हूँ। सुनो, eternal life means Jesus gives you a relationship with God and you experience that relationship. अनंत काल का जीवन मतलब यीशु जो है परमेश्वर पिता के साथ आपको रिश्ता देता है और उस रिश्ते का आप अनुभव करते हैं। Yeah. John 17 verse 3. यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3। Eternal life, what does it mean? अनंत काल का जीवन का मतलब क्या है? Know and experience God. जानना और प्रभु का अनुभव करना। Yeah. And it has begun now. और वह भी शुरू हुआ है। शुरू हो गया है यीशु के नाम में। And don't worry, और चिंता मत करो, even if you die physically, यदि आप शरीर में मर भी जाओ, glory to God. प्रभु को महिमा मिले, Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Your life is not ending. आपका जीवन खत्म नहीं हो रहा है। Oh, no, no, no. Your relationship with God continues. आपका रिश्ता प्रभु के साथ निरंतर जारी रहता है। Yeah. John 10 verse 28. यूहन्ना 10 अध्याय वचन 28। I gave them eternal life मैं उन्हें अनंत काल का जीवन देता हूँ and they will never perish. और वो कभी नाश नहीं होंगे। And then it says, आगे कहता है, no one can snatch you away from my hand. मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। Yeah. Number 2. दूसरा, At this place, two men who were the only sons of the family met. इस स्थान पर दो पुरुष जो परिवार के इकलौते बेटे थे वो मिले। The only. सिर्फ इकलौते। Who are these people? ये कौन है? That widow's young son, the only son. उस विधवा का जवान इकलौता बेटा। Yeah. Who else? और कौन? God has a family, you know. परमेश्वर का भी परिवार है, आपको पता है ना? Father, पिता, Son, पुत्र Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। And this beautiful family और ये सुंदर परिवार presented their only begotten son, उन्होंने जो है अपने इकलौते बेटे को प्रस्तुत किया। special son, खास बेटा, unique son, सबसे अलग बेटा, हटकर वाला बेटा, हटके बेटा, given to the whole world. पूरे संसार को दिया गया। Now that was a difficult time for that woman, उस स्त्री के लिए वो कठिन समय था, very difficult, बहुत कठिन, because their only son, क्योंकि उसका इकलौता बेटा widow. विधवा है वो। So what is going to happen? तो क्या होने वाला है? Loneliness. अकेलापन, Then lack of provision. She's a widow. उसके बाद प्रयोजन की कमी, वो तो एक विधवा है, No protection. कोई सुरक्षा नहीं है That time of society. उस समय के समाज में। And God sends His only son. और प्रभु अपने इकलौते बेटे को भेजते हैं। God is becoming a man. परमेश्वर मनुष्य बनते हैं। The biggest reason God becoming a man is so that your pain can be lessened on the earth. परमेश्वर जो है मनुष्य बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका जो दर्द है पृथ्वी पर कम होता जाए। Your pain would become less. आपका दर्द कम हो जाए। That's why I say to you, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, yeah, today, beginning today, आज से शुरू होता है। one of your major pain is going to go in Jesus' name. आपके मुख्य दर्दों में से एक दर्द जाने वाला है यीशु के नाम One major one will go. में। एक मुख्य दर्द जाने वाला है। Philippians 2, फिलिपियो 2 अध्याय 6 to 7. 6 और 7 वचन। The boy who died, na, जो लड़का मरा था ना, he should have lived. वो जिया होता, उसने जीना था, क्योंकि वो जवान था ना. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ none of you would die in your young age. आप में से कोई भी आपके जवान उम्र में मरना नहीं है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that none of you shall die in your young age. कि आप में से कोई भी आपके जवान उम्र में मरे नहीं। Yeah. I pray that you will live your full life. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका पूरा जीवन आप जियो। Yeah. Now this son of God अब ये परमेश्वर का बेटा who was actually standing over there, जो हकीकत में वहां पर खड़े थे, alive, जिंदा, do you know what he had come for? पता है वो किस चीज के लिए आए थे? To die. मरने के लिए।
He's very clear वो बहुत स्पष्ट थे what he has come for. वो किस चीज के लिए आए उसके बारे में। Verse 7, verse 7, verse 7. वचन 7, Instead, इसके बजाय he gave up everything, उन्होंने सब कुछ दे दिया, became a slave गुलाम बन गए, when he became like one of us. और हमारे जैसे जब वो एक बन गए थे तब। Ah, what an amazing God you serve. कितने अद्भुत परमेश्वर की आप सेवा करते Yeah, and today I pray, हैं। और आज मैं प्रार्थना the करता हूँ same Jesus, वही यीशु he will remove one of your major pain in your life in Jesus' name. आपके मुख्य दर्दों में से एक मुख्य दर्द वो निकालेंगे यीशु के नाम। Yeah. Number 3, तीसरा, when these two groups met, जब ये दो झुंड मिले, two people who suffered, they met. दो लोग जिन्होंने सताव सहा वो मिले। One एक is the widow. वो विधवा, Two दूसरा is Jesus. यीशु। वाह, Anybody saying, I have a lot of pain in my life? कोई कह रहा है ऐसा कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दर्द है, Please meet Jesus. कृपा करके यीशु से मिलिए। Isaiah 53 verse 3 to verse 4. यशायाह 53 अध्याय वचन 3 और 4। He was despised and rejected, उन्हें तुच्छ जाना गया, तिरस्कार किया गया उनका, a man of sorrows. दुखों से भरा हुआ व्यक्ति। Please write over there. लिखिए वहां पर, Jesus became a man of sorrows for me. यीशु मेरे लिए दुखों से भरे व्यक्ति बन गए। Jesus became a man of sorrows for me. यीशु मेरे लिए दुखों से भरे व्यक्ति बन गए। So, इसीलिए today, आज the Lord is going to take one major pain out of my life. आज मेरे जीवन से प्रभु जो है एक मुख्य दर्द बाहर निकालने वाले हैं। One major pain, एक मुख्य दर्द it will go. वो जाएगा। If you are despised, यदि आपको तुच्छ समझा गया, don't worry. चिंता मत करो, Today something good is going to happen. आज कुछ अच्छा होने वाला है। If people turn their backs to you, यदि लोगों ने आपको पीठ दिखाई अपनी, don't worry. चिंता मत करो, Today something good is going to happen. आज कुछ अच्छा होने वाला है। जो उसके जीवन में हुआ है ना, वो आपके लिए हुआ है. आमीन। Next verse. अगला वचन, Our weakness, हमारी कमजोरी he carried. उन्होंने उठाई, Our sorrows, हमारे दुख, your pain, आपका दर्द he carried. उन्होंने उठाया। 2000 years ago, he carried your pain. 2000 सालों पहले उन्होंने आपका दर्द उठा लिया, He carried all your sorrow. आपके सारे शोक को उन्होंने उठा लिया। One major pain एक मुख्य दर्द today will leave you. आज आपको छोड़कर जाएगा। Yeah. One major pain एक मुख्य दर्द will leave your family. आपके परिवार को छोड़कर जाएगा। One major pain एक मुख्य दर्द will leave your emotions. आपकी भावनाओं को छोड़कर जाएगा। One major pain एक मुख्य दर्द will leave your mind. आपके मन को छोड़कर जाएगा। One major pain एक मुख्य दर्द will leave your relationship. आपके रिश्तों को छोड़कर जाएगा। One major pain एक मुख्य दर्द will leave your workplace. आपके काम की जगह को छोड़कर जाएगा। One major pain एक मुख्य दर्द will leave your business. आपके व्यापार को छोड़कर जाएगा। One major pain एक मुख्य दर्द will leave you this morning. इस सुबह आपको छोड़कर जाएगा, Because he became the man of sorrow for you. क्योंकि वो जो है आपके लिए दुख के व्यक्ति बन गए। He carried your sorrow. उन्होंने आपका दुख उठा लिया, He carried your pain. उन्होंने आपका दर्द उठा लिया। That's why इसीलिए he says, today I will give you a good gift. वो कहते आज मैं तुझे अच्छा तोहफा दूंगा। Yeah. Look there, so beautifully he has written. वहां पर देखिए बहुत सुंदरता से लिखा है। We thought हमने सोचा his troubles were punishment from God, उनका जो सताव था प्रभु की ओर से दंड था, a punishment for his own sin. या खुद के पाप के लिए दंड था। But no, लेकिन नहीं, he took our weaknesses, उन्होंने हमारी कमजोरी को लिया, our sorrows. हमारे दर्दों को लिया। Number 4, चौथा नंबर, two enemies met that day. दो शत्रु उस दिन मिले। Two enemies. दो शत्रु, One is death. एक मृत्यु, Because one group was going out. क्योंकि एक जो झुंड था बाहर जा रहा था, They were carrying a dead young boy. वो मरे हुए जवान लड़के को लेकर जा रहा था। Death मृत्यु is the greatest pain. वो सबसे बड़ा दर्द है। And who's the other enemy? और दूसरा शत्रु कौन है? Jesus. यीशु। For death, मृत्यु के लिए Jesus is his enemy. यीशु उसका शत्रु है। The only person who can fight and destroy death सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है मृत्यु से लड़ सकता है, उसका नाश कर सकता है, that's Jesus. वो यीशु है। क्योंकि मृत्यु आदमी के जीवन में पाप के कारण आया है। Romans 5.
रोमियो 5 I think verse 12. वचन 12। Sin entered the world because of one man, पाप ने जगत में प्रवेश किया एक व्यक्ति के कारण, and that brought death. और उसने मृत्यु लाई, And all have sinned. और सबने पाप किया। But there's been an unusual man who came. लेकिन एक असाधारण व्यक्ति आया, Yeah. Who was God, is God, will continue to be God. जो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर बने रहेंगे। That unusual man, वो असाधारण मनुष्य Jesus Christ of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के, he is a pakka enemy of death. वो पक्के शत्रु है मृत्यु के। He is the one who triumphed over death. वही है जिन्होंने मृत्यु पर जय पाई है। Yeah. On the third day, तीसरे दिन hell could not hold him. नरक उन्हें रोक नहीं Grave could सका, not hold him. रोक नहीं सका उसे। Yeah, grave, hell, जो भी बोलो तुम्हें जो बोलना है बोलो. They could not hold him because, नरक और कब्र उन्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि not because he is son of God. No, वो परमेश्वर के पुत्र है, इस कारण नहीं, he did not sin. उन्होंने कभी पाप किया ही नहीं, He knew no sin. वो पाप को जानते भी नहीं थे। He was tempted उनको बहकाया गया in every way, हर क्षेत्र से, yet without sin. फिर भी बिना पाप के रहे। That's the God, the man that we worship. वो परमेश्वर, वो मनुष्य जिसकी हम आराधना करते हैं। Somebody asked me, do you worship man? तो क्या किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम मनुष्य की आराधना करते हो? I said, yeah. मैंने कहा हाँ, But that man who came from heaven, लेकिन वो मनुष्य जो स्वर्ग से नीचे आए ना, उनकी। not that man who came out of the womb of a mother. वो मनुष्य नहीं जो माँ के गर्भ से बाहर आया, उसकी नहीं, He came from heaven, वो स्वर्ग से आए, conceived by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा गर्भ धारण किया। Yeah. Third day rose up from the dead. तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। I pray you follow that group. मैं प्रार्थना करता हूँ आप उस झुंड का पीछा करो। I pray you follow that group मैं प्रार्थना which he is leading. मैं प्रार्थना करता हूँ जिस झुंड की वो अगुवाई कर रहे हैं, आप उनका पीछा करो। Yeah. One man gave death to us, एक मनुष्य ने हमें मृत्यु दी, but the Son of God, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने, Jesus Christ, यीशु मसीह ने, is a life-giving spirit. वो जीवन देने वाली आत्मा है। 1 Corinthians 14 verse 45. पहला कुरिन्थियों 14 में 45। Christ मसीह is a life-giving spirit. जीवन देने वाली आत्मा है। How many of you are concerned that your body is getting weaker? कितने लोग चिंतित हो कि आपका शरीर कमजोर होते जा रहा है? I am also concerned. मैं भी चिंतित हूँ। But let me give you a good news. लेकिन आपको खुश खबर देने दो। Is it okay to give you a good news? आपको खुश खबर दे सकता हूँ? Tell your neighbor, one day you are going to get a spiritual body, a glorious body, an honorable body in Jesus' name. अपने पड़ोसी से कहना, एक दिन जो है तुम्हें आत्मिक शरीर मिलने वाला है, महिमावन शरीर मिलने वाला, आदरणीय शरीर मिलने वाला यीशु के नाम में। Yeah. Okay. I want to finish, but I want to finish strong. मैं समाप्त करना चाहता लेकिन बहुत मजबूती के साथ करना चाहता हूँ। You know, after my friend went to be with the Lord, मेरे दोस्त प्रभु के पास जाने के बाद that day the Lord helped me to minister. उस दिन प्रभु ने मेरी मदद की सेवा करने के लिए। Yeah, I ministered maybe at least for 4 hours. 4 घंटों तक मैंने सेवा की। Yesterday I could do his funeral, कल उनकी अंतिम विधि में कर पाया, do revival fire. बेदारी की आग की प्रार्थना में ले पाया, Yeah, and today I'm here और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ because I know something is true क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ सत्य है and I want to show it to you. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 Corinthians 15 verse 52. पहला कुरिन्थियों 15 में 52 Yeah, and we will read till 55. वचन 55 तक हम पढ़ेंगे। Yeah, actually ना, I see your bottle of tears. मैं आपके आंसुओं की बोतल देखता हूँ। ये इतना लेवल रहेगा ना, वो आंसू नीचे गए. मैंने ऐसा देखा, नीचे गए। Okay, now I just want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, As you see your pain is going, जैसे आप देखोगे आपका दर्द जाते हुए, come back running to the Lord प्रभु के पास दौड़कर वापस आओ and say thank you और धन्यवाद कहो and give a thanks offering to God. और प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। Yeah, it will happen suddenly, अचानक से ये होगा, quick, तुरंत, even before you blink your eye. आपकी आंख झपकने से पहले, At the sound of the last trumpet. आखिरी तुरही की आवाज से पहले, Wow, the dead will be raised up. मुर्दे जी उठेंगे। In this fight of
death and life. इस मृत्यु और जीवन के बीच की लड़ाई में Yeah, death will be defeated. मृत्यु हारेगी जरूर, Yeah, it will be defeated. मृत्यु जरूर हारेगी, Yeah, it will be defeated. मृत्यु जरूर हारेगी। And the best thing is we will never die again. और सबसे उत्तम बात, फिर से हम मरेंगे नहीं, Never die again. फिर से नहीं मरेंगे कभी। बाजू वाले को बोलना हल्का ढीला ढोला नहीं है. You will be strong. आप मजबूत होंगे। Next verse, verse 53. वचन 53, Our dead and decaying bodies हमारे जो मरे हुए और सड़ते हुए शरीर will be changed into bodies that won't die or decay. वो ऐसे शरीरों में बदलेंगे जो मरते नहीं, जो सड़ते नहीं। Next verse, verse 54. वचन 54, The bodies which we now have, जो शरीर इस वक्त हमारे पास है they are weak वो कमजोर है and they will die. और वो मरेंगे एक दिन, But लेकिन they will be changed वो बदलेंगे, into bodies वो बदलेंगे शरीरों में that become eternal bodies. जो अनंतकालिक शरीर बन जाएंगे। वाह। Next verse, verse 55. वचन 55, You are ready? आप तैयार हो? This is the climax. ये जो है सबसे मुख्य बात है अभी, This is the main thing. ये मुख्य बात है। Wow. Outside, when people go for funeral, बाहर जब लोग अंतिम विधि के लिए जाते हैं, they say, वो कहते हैं you may be born again like this, like this, like this, like this, like this. शायद फिर से एक बार तेरा ऐसा जन्म होगा, ऐसा जन्म होगा, ऐसा जन्म होगा। When we die, जब हम मरते हैं we have a hope हमारे पास आशा है that one day कि एक दिन we will rise up. हम जी उठेंगे। Then he says, फिर वो कहते हैं the scriptures, वचन जो है it will become true. वो सच्चे होंगे। Yeah. मुझे कहना है, Bible is the only book which has got prophecies. बाइबल सिर्फ एकमात्र किताब है जिसमें भविष्यवाणियां है, And out of 2,500 prophecies, और 2,500 भविष्यवाणियों में से 2,000 have been already fulfilled. 2,000 पूरी हो चुकी है। वाह। We are waiting for the rest 500. हम बचे हुए 500 के लिए रुके हुए हैं। वाह। And this is one of the major prophecies. और मुख्य भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी ये है, And this will be fulfilled. और ये जरूर पूरी होगी। And then it says, आगे कहता है, death has lost its battle. मृत्यु ने जो है अपना युद्ध हार गया है। When you go home, जब आप घर जाओगे वापस, remember, याद रखना, तेरे जब बाटली का जो आंसू है ना वो कम हुआ है यीशु के नाम। आमेन। Yeah, it's become less. वो कम हो रहा है। Yeah. So there's a song. तो वहां पर एक गीत है, Death, मृत्यु you have lost the battle. तू युद्ध हार चुकी है, Where is your victory? तेरी विजय कहां पर है? Show your strength. Show, अपनी ताकत दिखा, show your अपनी strength. ताकत दिखा। लूका 7, मुझे लगता 13 है। कहानी I have to finish because you will realize what the कहानी. कहानी मुझे जो है समाप्त करनी, क्योंकि आपको एहसास होगा कहानी में क्या है। When the Lord saw her जब प्रभु ने उसे देखा in her pain, उसके दर्द में, his heart began to move. उनका हृदय तरस से भरने लगा। तेरा बॉटल देख के ना प्रभु बोल रहा बस हो गया, अभी थोड़ा कम कर देता हूं। Nowhere in the Bible says all your pain will be gone. बाइबल में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि तुम्हारा सारा दर्द चला जाएगा। सारा दर्द भी गया ना, बाद में तुझे 4 लोग मिलने वाले जो तुझे दर्द देने वाले। मैं कोई आमेन नहीं बोल रहा, देखो इतना मैंने तुम्हें प्रकाशन दिया और क्या मांगता। Jesus, such an amazing person, यीशु इतने अद्भुत व्यक्ति, never troubled anybody, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, but people troubled him so much. लेकिन लोगों ने कितना सताया उन्हें। It's very normal. ये बहुत आम बात है। But don't worry, लेकिन चिंता तुम्हारी मत जो करो, कुप्पी है ना उसमें थोड़ा सा आंसू गायब हो रहे हैं, थोड़ा सा दर्द गायब हो रहा है यीशु जी के नाम में। आमेन। Okay, then he said, फिर यीशु ने कहा, don't cry. रो मत। Right over there, वहां पर लिखिए, Lord is saying to me, प्रभु मुझसे कह रहे हैं, don't cry. रो मत, I'll help you. मैं तेरी मदद करूंगा। Businessman, व्यापारी व्यक्ति, don't cry. रो मत, The Lord will help you. प्रभु तेरी मदद करेगा। People who work, जो लोग काम करते हैं, don't cry. रो मत, The Lord will help you. प्रभु आपकी मदद करेंगे। People who study, जो लोग पढ़ाई करते हैं, don't cry. रो मत, The Lord will help you. प्रभु आपकी मदद करेंगे। People like me, मेरे जैसे लोग, don't cry. आप रोना मत, The Lord will help me. प्रभु मेरी मदद करेंगे। Next verse, हो गया। अगला वचन, Wow. Then he walked to the coffin, फिर वो जो कॉफिन के पास गए, touched it. उसे छुआ। ये करते नहीं है, यहूदी लोगों के अंदर ये करते नहीं। अगर आप कॉफिन को छू दोगे ना तो आप अशुद्ध हो जाओगे। लेकिन फिर भी यीशु जी ने बोला नहीं, आज तो मैं इस मृत्यु को, आज हम यहाँ पे एक युद्ध करेंगे।
यस और उस युद्ध में मैं उसे बताने वाला हूं मैं जीतने वाला हूं। आमेन। ब्यूटीफुल। बहुत दे सुंदर। स्टॉप्ड, तो रुक गए। सो ही स्पोक टू द तो- यंग मैन, तो यीशु ने उस जवान लड़के से कहा गेट अप। उठ जा। ही गॉट अप। वो उठ गया। लास्ट सीन देखना है, आखिरी सीन देखना है। और तेरे साथ भी होने वाला है। वाह। लास्ट सीन, आखिरी सीन, नेक्स्ट वर्ड। अगला वचन। एंड ही बिगन टू टॉक। और वो बात करने लग गया। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, सबसे सुंदर बात, जीसस गेव हिम बैक टू हिज मदर। यीशु ने उसको उसके माँ को फिर से सौंपा। जब यीशु जी हमें मृत्यु में से उठाएंगे ना, हमें लेंगे और पापा से कहेंगे, आज तक आपने इन्हें मेरे हाथ में दिया था ना, देखो मैंने उन्हें सुरक्षित लाया है, वाह ये लो। वाह। आमेन। आपकी अमानत लो। वाह। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीसस विल विन। यीशु जीतेंगे। यीशु जीतेंगे।